مسلک والے تھے, تو جب انہوں نے ہیڈلائن بناتے تھے وہ کہتے تھے افغانستان میں بدامنی کے سائے طالبان نے 17 صوبائی دارالحکومت قبضے میں لے لیے, وہ اس طرح بناتے تھے. بہرحال اچھا سر, ایک سوال جو میں نے کل ہی دیکھا سی جی ٹی این پہ اس کا انٹرویو سہیل شاہین کا, اس کو بھی بنایا میں نے, تو وہ کہہ رہے تھے ہم نے تو اسلامی افغانستان اسلامی امارات کے لیے جنگ لڑی ہے 20 سال, ہم تو وہی قائم کریں گے, ٹھیک ہے, اور اس میں وہ دوسرے افغان سیاسی رہنما بھی شامل ہوں گے طالبان کے علاوہ. تو اس کی فارمیشن کیا ہوگی, عبدالغنی برادر کا کیا رول ہوگا, کیا وہ یہ عبدالغنی برادر اور ملا ہیبت اللہ اور ملا حکیم اللہ جو ان کے چیف جسٹس ہیں, یہ سارے لوگ شفٹ ہوں گے کابل میں, فارمیشن کیا ہوگی یہ ذرا بتائیں. اور دوسرا یہ بتائیں کہ انہوں نے معافی کا اعلان کیا, آپ اس کو بار بار پروپوگیٹ کر رہے ہیں, معافی کا اعلان کیا, لیکن کل خبریں آئی ہیں, ہم نے اس کو ان خبروں کو روکا ہے. ایک جرمن صحافی کو کے گھر میں چھاپا مارا ہے, اور انہوں نے نیٹو کے ساتھ کام کرنے والے لوگ جو ہیں جو ان کے گھروں میں چھاپے مارے ہیں, اور جو جرمن ڈی ڈبلیو کے لیے کام کر رہا تھا اس کے گھر میں چھاپا مارا, ایک ان کا رشتہ دار مارا گیا ہے, ایک زخمی ہوا, باقی بھاگ گئے ہیں, اور جرمن صحافی جو ہے وہ شاید ویسے ملک سے نکل گیا ہے. تو اس خبر کو انہوں نے چھپایا ہے کہ ابھی تک ان کا کوئی بیڈ امیج نہ آئے. یہ بتائیں کہ اگر معافی کا اعلان کر چکے ہیں تو وہ دل سے ایسا کیوں پھر وہ عمل نہیں کرتے ہیں, اور دوسرا فارمیشن کیا ہوگی گورنمنٹ کی؟ میں عرض کرتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ معافی کا اعلان کے ساتھ ایک شرط بھی ہے فار دا فیوچر کانڈکٹ. معافی کا اعلان یہ نہیں ہوتا کہ تم جو بندوق جب تک چلائی تھی وہ تو ہم نے معاف کیا, آئندہ جب چلاؤ گے تو آئندہ معاف کریں گے, ایسا نہیں ہوتا. کیا کیا تھا اس نے؟ جو جرمن صحافی ہے وہ آرگنائز کر رہا تھا, افغانی ہے شاید وہ, جی مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے. انہوں نے بہت تھوڑے انسیڈنٹس ہوئے ہیں. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جھنڈا بدلا ہے کیونکہ ان کو پتا چلا تھا کہ ایک اسکیم بنائی گئی ہے افغانی تعصب, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جس وقت ذبیحہ مجاہد نے 3 ریسٹرکشنز لگائی تھیں میڈیا کے اوپر, اس نے کہا دیکھو ایک تو یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں ہم نے مار کھائی ہے 20 سال, اور 20 سال کو چھوٹی جنگ نہیں ہوتی, اسلام کے بارے میں ہم کو برداشت نہیں کریں گے کوئی گفتگو, ورنہ کوئی ضرورت نہیں. دوسرا نے کہا دیکھو اسلام افغانستان ایک منٹلی ایتھنک ملک ہے, یہاں تم ایتھنکسٹی کی تعصبات آگے نہیں لے کے آؤ گے. انہوں نے ایک حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہے, بڑی تلخ حدیث ہے, اور آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا 2 جھنڈے ہیں, ایک ہے لوا اور ایک ہے رایا. رایا کہتے ہیں جنگ کے جھنڈے کو جو کالا ہوتا تھا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا تھا, اور ایک ہے لوا جو کہ امن کا جھنڈا ہوتا ہے جو سفید ہوتا ہے, اس پہ لا الہ الا اللہ. فرمایا یہی 2 جھنڈے ہیں, اس کے علاوہ سب جھنڈے اندھے جھنڈے ہیں کیونکہ وہ عصبیت دکھاتے ہیں, اور اندھے جھنڈے کے ساتھ لڑنے والا جہنم میں جائے گا. عصبیت کے لیے جس نے بلایا اس نے اپنے آپ کو جہنم میں دھکیلا. اتنی سخت چیز ہے, اتنا سخت, لا فضل العربی عصبیت. ایک جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا کہ تمہاری جاہلیت کے, عصبیت کے, رنگ کے, نسل کے بت میرے پاؤں تلے کرچی کرچی ہو گئے, وہ صرف وہاں کا. اور وہ انہوں نے ثابت کیا. دیکھیں کبھی آپ دیکھیں جس وقت تو 1906 میں تھے, ان کے ساتھ بدخشانی شیعہ بھی تھے ساتھ, ان کی کیبنٹ, ان کا جو ویلفیئر کا منسٹر, انہوں نے پکتیکا کے اندر ایک شیعہ کو گورنر لگایا تھا اس وقت, اور وہ فارسی اسپیکنگ تھا. یہ ایک رول اس کے اندر, وہ جو جرمن صحافی اور یہ میڈیا, اور ان کو پتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کام اگر ہوگا تو یہ میڈیا سے ہوگا, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 20 سال کی جدوجہد 1.5 منٹ کی کیسٹ کے اندر آ کے تباہ کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں آج تک اپنے یہ قصور نہیں مانتے جو وہ کیسٹ انہوں نے اس کی کوڑوں والی سوات کی نکالی تھی. اور اگر سوات کی کبھی کسی نے کہانیاں لکھنی شروع کرے گا, جب اس ملک میں اللہ تعالیٰ آزادی دے گا تو سوات تو کہانیاں لکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا کچھ پیتا ہے اس ملک کے اندر. یعنی آپ خود سوچیں, آپ کا ایک سپاہی مارا جائے تو آپ دنیا اجاڑ دیتے ہو اس گھروں کی, اس علاقوں کی. وہاں تو کچھ نہیں ہوا تھا, وہاں تو. سر سوال یہاں یہ آتا ہے کہ جس چیز کا یہ ذکر کر رہے ہیں افغان صحافی ہے, اسے صرف جرمن میڈیا نے رپورٹ کیا, کسی اور نے نہیں. کیا پتا جرمن میڈیا سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ پہلے تو یہ بھی ثبوت دینا. نہیں, پہلی بات تو نہیں, مجھے اس واقعے کا پتا ہے, واقعہ کا پتا ہے, جرمن میڈیا نے بھی رپورٹ کیا, مجھے اس واقعے کا پتا ہے. دیکھیے جرمن میڈیا نے بھی فکر بنا کے رکھے, چلائے نہیں, صحیح کیا. میں بتاؤں آپ کو, اچھا سب سے بڑی بات مجھے بتائیں, آپ اس دنیا کے اندر زندگی میں گزارتے کم از کم اسی 20 سالوں کے اندر بغداد فتح ہوا ہے, موصل فتح ہوا ہے, ٹھیک ہے, رم اللہ فتح, کیا نام ہے دیتا, خاص فلوجہ فتح ہوا ہے, ٹھیک ہے, حلب فتح ہوا ہے.
कोई इतना पीसफुल शहर फतह हुआ है मुझे बताओ यार, काबुल होगा जी। बताओ तो सही। कोई फौज इतनी आसानी से इतने अमन से दाखिल हुई है किसी मुल्क में? ढाका, हाँ वो भी, हाँ वो लेकिन 20 साल से पहले कहता था। अच्छा वो फॉर्मेशन क्या होगी गवर्नमेंट की? फॉर्मेशन उन्होंने नो कॉम्प्रोमाइज ऑन शरिया। सर जो उनका रोड मैप है सितंबर 2019 का, ओदे क्या होंगे? सदर होगा कोई? नहीं, सिर्फ अमीर उल मोमिनीन। ये क्या होंगे? गनी और अब्दुल्ला यूसुफ ये बाद में बनाया जा सकता, कुछ भी कर सकते हैं ना। देखिए फॉर्मेशन का जहां तल्लक है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के जमाने में और तरह की फॉर्मेशन है, हजरत उमर के जमाने में और तरह की फॉर्मेशन, हजरत उस्मान के जमाने में और तरह, हजरत अली ने बिल्कुल हालात के मुताबिक फॉर्म। लेकिन अमीर जो है इस्लाम में 3 ही होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की जात, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उलिल अम्र मिनकुम। चौथा कुछ नहीं है। ये नहीं है कि 400 बंदों की पार्लियामेंट जो है वो खड़े होकर कह दे कि कुछ दिनों के लिए कुरान की फलां सस्पेंड कर देते हैं, तो अब कर दो। पाकिस्तान में बहुत सारी आयतें सस्पेंड। शुरू में बात कर रहे थे तो आपने कहा कि उनका इरादा ये है कि वो खिलाफत कायम करेंगे इस्लामी असूल पे। तो पहला सवाल ये है कि वो खिलाफत जो कायम करेंगे वो सिर्फ जो अफगानिस्तान की टेरिटरी है उसके अंदर ही रखेंगे? अगर उस हद तक ही रखेंगे तो क्यों रखेंगे? क्योंकि माजी में तो जो खिलाफत का हम पढ़ते हैं वो तो फिर एरियाज को एक्सपैंड करती हैं और जगहों पे भी अपनी हुक्मरानी लेके जाते हैं। और इससे कनेक्टेड ये है कि वो यूएन की रिकग्निशन सीख करेंगे, और अगर करेंगे तो उसके साथ जो बहुत सी लिमिटेशंस आएंगी, इंटरनेशनल चार्टर्स आएंगे, तो वो और जो उनका खिलाफत का इरादा है वो आपस में रिकंसाइल किस तरह होता है? देखिए एक तो 6 साल तक उन्होंने पहले हुकूमत करके देखी, और इसलिए अपने आप को खिलाफत इमारत कहते हैं कि खिलाफत बात है। हमारे यहाँ मॉडल्स रहे हैं 1400 साल में कि हमारे यहाँ 2 भी हुकूमतें रही हैं, लेकिन उनको हम आइडियल नहीं समझते। आइडियल तो वही है कि मुस्लिम उम्मा की एक हुकूमत हो और एक खलीफा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, हम बड़े अजीब-ओ-गरीब लोग हैं। एक पूरे का पूरा मुल्क जिसे हम चीन कहते हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं था बहुत अरसा तक। आपको पता है ताइवान होता उसकी जगह, उसने अक़वाम मुत्तहिदा में कभी सीख नहीं किया। वो इस दुनिया में जिंदा रहा, उस मौलिद की हम टोपियां पहनते रहे, उस मौलिद की हम लाल को जेब में डालते रहे, जिंदा रहा, दुनिया में चलता रहा। फिर हम अमेरिका को जरूरत पड़ी, फिर निक्सन आ गया, किसिंजर आ गया, हमने उसको जहाज में बिठाया, हमने उसको वहाँ लेके गए, उनका मायदा हो गया, उन्होंने ताइवान को कान से पकड़ा, अपने कहा दबा हो जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, जाओ जाके जो मर्जी पकौड़े तलो या कुछ करो। अब तो चीन आ गया हमारे पास। एक IMF का, वर्ल्ड बैंक का सिस्टम था जिसके तहत तो सारी की सारी करेंसी डील करती थी, सूदी निज़ाम था। 1917 में एक मुल्क आता है जिसे रशिया कहते हैं, उसका कोई ताल्लुक नहीं उस मॉनेटरी सिस्टम के तहत। बाजार से सोना खरीदता है, बाजार से डॉलर खरीदता है और अपनी पेमेंट्स करता है, और उसके बाद तो सर्वाइव करता है, 75 साल तक सर्वाइव करता है। इकोनॉमिकली कोई मसला नहीं था। मसला ये हुआ था कि सिचुएशन बिल्कुल इस तरह की हो गई थी कि एक ऐसी कंपैटिबिलिटी में पड़ गया था, वॉर, स्पेस वॉर और ये वो, जिसकी वजह से उसने अपने आप को खराब कर लिया, लेकिन वो चलता रहा। हमारे बारे में सवाल किया जाता है कि आप कैसे चलोगे, यानी अफगानिस्तान के अकल से लोग तनख्वाहें कहां से देंगे, फलां कहां से देंगे? पूरी दुनिया डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, कभी पूछा है तनख्वाहें कहां से देते हो? क्या डॉलर खाने के लिए आते हैं तब लोग जिंदा रहते हैं? उस मुल्क की इकोनॉमी जो होती है वो उसके खेत होते हैं, उसके खलिहान होते हैं, उसके इंडस्ट्रीज चल रही होती है, बाकी चीजें। अफगानिस्तान इज क्वाइट सस्टेनेबल, और अफगानिस्तान में 30 साल तक ईरान, बल्कि 40 साल हो गए हैं सैंक्शंस के अंदर है। क्या ईरान का पेट्रोल लोगों ने खरीदना बंद कर दिया? क्या ईरान की उनकी मिडिल लोगों ने खरीदना बंद कर दी? लिथियम ऑफ सऊदी अरेबिया कहते हैं, सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम कहते हैं, और पागलों की तरह लोग तैयार करें। 68% ठेके इस वक्त चाइनीज के पास हैं, 68%, और अमेरिकन कहते हैं कि वी आर पेइंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द चाइनीज कंपनी, और उसके अंदर उनका गोल्ड एंड कॉपर, उसकी माइंस का ठेका उनके पास है, उनके पास वो गैस पाइपलाइन का ठेका उनके पास है, उनके पास ताजिकिस्तान की सिल्मी डैम के सप्लाई का ठेका, इलेक्ट्रिक सप्लाई ठेका उनके पास है। अकेला सिर्फ मार्बल और ये चीजें बेचना शुरू कर दें तो वो काफी है। आज बड़ी बड़ी चीजें चल रही हैं,
पूरी की पूरी इकोनॉमी जो थी उसके अंदर 70% इकोनॉमी जो थी वो ड्रग्स के ऊपर बेस करने लगी थी अफगान गवर्नमेंट की। वो तालिबान ने उसको माइनस करने का कहा है और पहले भी माइनस करना था। मसला कुछ नहीं होता, दुनिया में मुल्क सर्वाइव करते हैं, करते रहे हैं, हमेशा से करते। क्यूबा जैसा मुल्क सर्वाइव करता रहा है, कोरिया जैसा मुल्क सर्वाइव कर रहा है, कौन कौन सा मुल्क है जो सर्वाइव नहीं कर रहा। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि तालिबान बुनियादी तौर पर उन पर इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर है कि आपकी सरजमीन जो है वो किसी जगह इस्तेमाल नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी, वहां नहीं होगी, वहां नहीं होगी। तो यार बात है, ऐसी सूरत हाल के अंदर एक नारा नहीं लगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आसिफ महमूद ने परसों एक कॉलम लिखा, कहता है मैं बाजार में से गुजर रहा था तो मुझे कुछ लोगों ने बिठा लिया, और ये सवाल मुझसे भी हुआ है बहुत दफा कि ये बताओ अगर ये नूर मुकद्दस वाला वाकया तालिबान के जमाने में होता तो क्या होता? उसको गर्दन ना उड़ा देते अब तक 2 दिन के अंदर। ये जो वाकया हुआ है, जो लड़के का वो जो वीडियो बनाई है थप्पड़ पर मार मार, ये अगर आज तालिबान होते तो क्या करते? ये जो लाहौर का वाकया हुआ है, जो मीनार पाकिस्तान का, ये होता तो क्या करते? जितना आपका गंदा एंग्लो सैक्सन लॉ रहेगा और जितना वहां प्रॉम्प्ट जस्टिस होगा, उसकी खुशबू जहां आएगी। मैं वाकयात के वाकयात कोट कर सकता हूं जिस जमाने में तालिबान वहां थे कि लोग अपने मुकदमा लेके कंधार में, हिलमत में, गजनी में, पक्तिका में जाते थे और इंसाफ लेके आते थे। तो एक खुशबू का चिराग वहां जलने तो दे, फैल जाएगी खिलाफत। ऐसी कौन सी बात? वो खिलाफत देखिए, पहली बात है कि मैं वो जो मुल्ला अमर का जवाब भी था कि वो एक सिर्फ छोटा सा भी अगर मुझे मिलेगा तो मैं उस पर कायम करूंगा, और आप उसी के दावे थे, उसी के ही जिम्मेदार हैं। क्या अमारत और खिलाफत में? जी, अमारत और खिलाफत में बेसिकली टेक्निकली फर्क हम करते हैं। खिलाफत के बारे में समझ कहते हैं पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो एक खलीफा के मतहत होंगे, और उसके फिर ऐसा वक्त के साथ साथ अलग भी रहे, 2-2 3 लेकिन आइडियल यही है कि उमर इब्न खत्ताब के जेर साया ही सारे थे, अली इब्न अबी तालिब के जेर साया थे, फिर मुआविया भी लदा हो गए। लेकिन आइडियल वो आइडियल सूरत हाल है, वो जब कभी आएगी इंशाअल्लाह, और रसूलुल्लाह की पेश गोई है कि खिलाफत मनाज नबू आएगी। ये क्या है, इमारत क्या है? एक जगह पे आप इस्लामी कवानीन नाफिज करते हैं और उसमें एक अमीर होता है। लफ्ज तो कुरान में तो लफ्ज इमारत का है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही, कि तुम अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और जो तुम में साहिब अमर है उसके, और साहिब अमर के लिए इस्लाम ने बताया कैसे उसको कटा कर, वैसे ही उन्होंने किया। जी, अस्सलाम वालेकुम साहब, उमैर मिनहास दुनिया टीवी से। तो सारा मैं कवर करता रहा हूँ, ये जब से इन्होंने जंजरन जो पहला इन्होंने सूबाई दारुल लिया था तो मैं हेडलाइन बना के देता था तालिबान की पेशकदमी जारी। तो हमारी हेडलाइन जो बंदा पैसा होता था ना वो कहता था अच्छा इतने सूबाई दारुल कर लिए, इतने फीसद कर लिया। मॉस्को भी इन्होंने जब कहा 85% बैठा हुआ है कि हमें तालिबान जो है उनसे साथ मिलके हमें हुकूमत में हिस्सा ले दो, और बेटे को वहां बिठाया हुआ है कि ताकि तुम 2-3 बयान दो। देखिए बात सुने, जो पंजशेर वैली है, इस पंजशेर वैली की कोई हैसियत नहीं है अगर उसका जो ताजिकिस्तान वाला बॉर्डर है, शाह सुल्तान बंदर वाला बॉर्डर जो है, वो अगर उनके पास ना हो, क्योंकि ताजिक स्पोर्ट जो है वो वहां से आती है। जब 1996 में तालिबान आए थे तो अहमद शाह मसूद जो है, इसका एक घर दुशंबे में भी है। जो लोग दुशंबे गए हैं उसका बहुत बड़ा घर है जो उसको बना के दिया गया है। तो दुशंबे में उसने इंडियन एम्बेसडर को बुलाया, अब तो ये आम सी बात होगी, उसने आर्टिकल भी लिख दिया है। तो उसने कहा कि मुझे आप सपोर्ट करें, मैं तालिबान के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। और उसने अपनी टोपी उतारी और कहा अगर मुझे अफगानिस्तान में इतनी सी जगह भी मिल जाए तो मैं तालिबान के खिलाफ लड़ूंगा। तो उसने कहा कि हमें क्या फायदा होगा? तो उसने कहा तालिबान के खिलाफ लड़ना तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना है। तो इंडिया ने $7 मिलियन से एक अस्पताल बना के दिया था और 10 हेलीकॉप्टर दिए थे जो उसके सिपाहियों को वहां लेके आते थे। पंजशेर बहुत सख्त किस्म की वैली है, यहाँ रूस भी नहीं घुस सका था, लेकिन उसके लिए आपको एक बॉर्डर चाहिए होता है जहां आप सप्लाई ले सकें। वो बॉर्डर इस वक्त तालिबान के पास है। और तालिबान की जो इस वक्त स्ट्रेटेजिक मूव हुई है कि उन्होंने चारों तरफ जितने भी बॉर्डर थे, चारों तरफ, मसलन इस्लाम शहर का बॉर्डर था जो हेलमंद की तरफ से ईरान को जाता है, वो उनके पास है। तुर्कम का बॉर्डर उनके पास है। उसके बाद बुलदक का बॉर्डर उनके पास है।
वाखान कॉरिडोर का बॉर्डर उनके पास है, ताजिकिस्तान का बॉर्डर उसके पास है, और तुर्कमानिस्तान का बॉर्डर चूंकि बहुत ज़्यादा हिली है वहाँ वो, लेकिन वहाँ भी उनके पास है। तो इस वक्त कल उन्होंने बड़ी, ज़मीर अमजाद ने बड़ी बात की, उसने कहा हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि एक गोली भी अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकलेगी, एक गोली भी। यानी इतनी बुरी डिफीट हुई है कि इस वक्त दुनिया में जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है वो दुनिया में बेहतरीन हेलीकॉप्टर समझा जाता है। 160 हेलीकॉप्टर जो है वो उनके पास आए हैं। दुनिया के किसी एक मुल्क के पास 50 से ज्यादा हेलीकॉप्टर नहीं है, जबकि तालिबान के हाथ में 160 हेलीकॉप्टर आए हैं। आप खुद सोचें कि किस बुरी तरह अमेरिका भागा वहां से। मुजाहिद दे चुके हैं। ज़मीर मुजाहिद ने कहा है कि जब हम काबुल के अंदर दाखिल हुए हैं तो काबुल के अंदर दाखिल होने से पहले ही बहुत सारी फोर्सेस जो थी वो वहां से फरार हो गई थी। ये ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए हमारे यहाँ होता है कि कन्फ्यूजन जो जवाब आता है वो नहीं नशर कर। और वो उसमें से जेल की वो फोर्सेस जो थी वो भी निकल गई थी, और निकलते निकलते वो कैदी जो थे वो उनके जाने से फौरन रिहा हो गए थे। उनके अंदर एक फ़कीर मोहम्मद जो था वो तो TTP का जो है वो उसको रिहा किया गया है, रिहा हो गया है। उसके अलावा TTP के कोई कैदी जो थे, आप खुद सोचें 67 जो हैं वो इंडियन बेसिस हैं। NDS, यही पाकिस्तान इल्ज़ाम लगा रहा है NDS के ऊपर कि वो TTP को प्रोटेक्ट करती है, वो उनको जेलों में डालेंगे। और ने कहा हमें बिल्कुल नहीं पता था कि वहाँ कौन था कैसा था, हमारे अपने कैदी जो हैं वो हमारे पास पहुंच गए थे, हमें पता है। बाकी तमाम आम कैदी जो थे उसका, और TTP का तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं है ना, कौन सा कैदी TTP का है और कौन सा नहीं है। एक तो ये है कि इसका जवाब खुद ज़मीर मुजाहिद है, हमने नहीं छोड़े, हमसे पहले जो भी था वो छोड़े जा चुका है। बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल ये है कि पिछली दफ़ा तब तालिबान गालिब आए थे तो हज़ारा में बहुत कत्लेआम हुआ था। इस दफ़ा ख्याल था कि उस तरह की नौबत नहीं आएगी, लेकिन अब इत्तलात आ रही हैं कि उसी तरह के मामला होना शुरू हो गए हैं। क्या ये दुरुस्त है? देखिए, इसके ऊपर भी उनकी इमारात की वेबसाइट पर चले जाए तो सवालात के जवाब मौजूद हैं। उन्होंने सबसे पहले ये काम किया है कि उन्होंने बाकायदा 3 लिंक दिए हैं कि काबुल के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के जुलूस मुहर्रम के 7वें 8वें 9वें के जुलूस हैं वो गुजर रहे हैं, आप उनको लाइव देख सकते हैं। दूसरा, तालिबान की क़यादत बाकायदा उस मजलिस में शरीक हुई है जो वहाँ गई है। तीसरा ये है कि मजलिस इबादत इस्लामी जो है वो जो है उनकी अब्दुल्ला मज़ारी की, वो बाकायदा ईरान के साथ उनके बाकायदा मुज़ाकरात हुए हैं, और ख़ुद ईरान ने उनको कहा है कि आप इनका तालिबान का साथ दो, और वो आजकल उनके साथ हैं। और चौथी बात यह है कि ईरान के ख़िलाफ़ जो सबसे बड़ी चीज़ थी जुंदुल्ला, उस जुंदुल्ला के चीफ को तालिबान ने पकड़ के कत्ल किया है और ईरानियों को बताया है कि आप हमारे सामने हैं, और ये रिपोर्ट्स भी उनकी अलमारा साइट पे मौजूद हैं। और वो लोग रूस के ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी हैं उनकी। तो मौजूदा अफ़गान हुकूमत में यानी तालिबान के साथ उनका कोई पैचअप या उनका कोई है चांस कि वो भी उसमें शरीक हों? पहली बात तो ये है, मुझे ये बताइए, आपने, मैं तो तुर्की में 3 दफ़ा गया हूँ, और मैं तुर्की में तैयब एर्दोगान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं उनसे मेरी मुलाकात भी हुई, और तैयब एर्दोगान साहब ने शाम के उन इलाकों पे बाकायदा फौज भेज के कब्जा किया है, जैसे जराबलस वगैरह है या कुबानी वगैरह है। ये सारा इलाका जो है ये हलब और इदलिब के दरमियान का इलाका है। क्यों कब्जा किया? इसलिए कि वहाँ कुर्द आबाद थे, और वो चाहता था कि कुर्दों को अपने इलाके से परे धकेल दिया जाए और वहाँ पे अरबों को आबाद कर लिया जाए। फिर अपने इलाके से उसने कुर्दों को धकेल के वहाँ शाम के अरब लेके आए, जैसे उसने उर्फा में, हताई में, किलस में, इन सारे इलाकों पे हम लोग गए भी हैं, हमने तमाम भी लेके गए। ज़ाहिर बात है बहुत बड़ा आलमियत है शाम का वहाँ पर। और कतर के साथ उन्होंने मिलकर एक वेलफेयर की एक तंजीम जो है वो करी। पुल बना, चाह बना, मस्जिद और तालाब बना, काम अच्छे कर और फैज के असबाब बना। ये हमें बहुत अच्छा लगता है। आप मार खा के आ जाओ काफरों से, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर दूंगा। आप लोगों से, अमेरिका से कुट खा के आ जाओ, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। मैं तुम अमेरिका से लड़ता क्यों नहीं है? अल्लाह ने तुम्हें खाना खिलाने का हुक्म दिया हुआ जहाद के अंदर, जहाद के वक्त।
ये मिसरा लिख दिया कि शौक ने महराब मस्जिद पर कि नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। यानी आप 140 मील के उस रेडियस को तो फतह कर सकते हो, लेकिन जहां आपको मामला आ जाता है कि जहां आपने दायरा ज़ूर के किरे में जाना है और यहाँ पे अमेरिकन और रशियन मफादात का टकराव आता है, आप पीछे हट जाते हो। आपके इलाके से मैंने सवाल किया था उनसे, मुझे कहा कि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, उन्होंने मुझे कहा आप मुझे लिख के सवाल दे दें। मैंने कहा लिख के तो कभी भी सवाल नहीं किया करते। मैंने कहा आप सिर्फ एक सवाल मैं ऐड कर सकता हूँ कि इन सारी चीजों की मौजूदगी में ये अमेरिकन जहां से उड़ के वहां जाके दायरा ज़ूर के अंदर बाकी जगह पर जाके बमबारी कैसे कर लेते हैं आपके इलाके से। दूसरी बात यह है जहां तक रोहिंग्या का ताल्लुक है, क्योंकि रोहिंग्या उस शाम के इलाके में फिट नहीं होते थे। एक रोहिंग्या को टर्की की नेशनलिटी नहीं देगी, शाम के सबकी नेशनलिटी देगी। खैरात खिलाना अपनी जगह। मैं आपको बताऊं, शुरू में जब मुल्ला उमर उस वक्त उसके खिलाफ इंडियंस, ईरानी ये सारे लड़े थे, तो एक बहुत तल्ख बात मैं आपको कर रहा हूं। और उस वक्त ऑनस्लॉट आ गया था कि काबुल में बहुत सारी सूरत हो जाए, तो पाकिस्तान से कुछ तबलीगी गए थे वहां पर, चलो चलो तबलीग पे निकलते हैं। तो मुल्ला उमर ने तबलीगी जमात पे पाबंदी लगा दी थी कि ऐन वक्त जहाद में ये कौन सी बात है कि 40 दिन का चिल्ला काटा जाए और 4 महीने का चिल्ला काटा जाए। ये किस रसूल ने तुम्हें तबलीग भेजी? असल मसला ये है कि मामला असल है जहाद का। आपकी कन्विक्शन ही नहीं है तागूत के साथ। आप तागूत के बाजू जो मर्जी करते रहो, आपको अल्लाह ताला आपको अजर दे। बाकी दूसरी आपने बात की तो इसकी की थी, दूसरी आपने की थी उनकी। जो एक बात, दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान में जो रूस के मुकाबले में जो लोग बनाए गए, क्योंकि हम लोग ने सामने खुद वो तंजीमें जो थी वो तंजीमें बनाई गई थी शुरू से पहले। एक तो शुरू में कुछ लड़ने वाले मुजाहिदीन आए थे, वो 1.5-2 साल तक। 82 के बाद हुआ यह था कि जब वहां से हिजरत शुरू हुई है तो असिस्टेंट कमिश्नर जो होता था उसके पास एक महाजर को पेश किया जाता था कि ये महाजर वहां से आ गया, क्या करें। अब वो होता था एक डिपोटेशन एक्ट होता है कि इसको वापस भेज दिया जाए, उसको कहते हैं ट्रेसपास का। हम उसको कहते थे, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, कि किसी से तस्करा ले आओ, किसी से कुछ ले आओ। वो हिकमतयार के पास जाता था, सियाफ उस तस्करा लेके वहां आ जाता था और हम उसको कहते। इस तरह तो हमने वो तंजीमें बनाई, कन्विक्शन नहीं थी। फिर दूसरी बात यह थी, एक बहुत जबरदस्त किस्म का तस्वर ये दिया जाता था, ये देखिए क्या बात है, पढ़े लिखे लोग हैं, एक इंजीनियर है, एक प्रोफेसर है, एक सब कुछ है, ये कुछ सेटअप के अंदर लेके आएंगे साथ। और फिर वो इस तरह अमेरिकन एड के मोहताज बन गए थे। शुरू में बहुत अच्छा रहा। शुरू में मुझे याद अच्छी तरह कि मैं पहली दफा जिस वक्त कंधार गया हूँ, ये बात है 1983 की, तो कंधार के लोग कहते थे, आगे बल्कि गजनी के भी लोग कहते थे कि जब रशियन प्लेन्स आते हैं ना तो कुछ मुख्तलिफ किस्म की परिंदे आ जाते हैं जो उड़ते हुए गुजरते हैं और हम छुप जाते हैं, वो बमबारी करके चले जाते हैं। लेकिन फिर ये चीजें खत्म होती चली गई आहिस्ता आहिस्ता। फिर वही हो गया कि 2 ट्रक ISI के गायब हुए, उधर बेच दिए गए, 2 उधर बेच, फिर इस तरह की सूरत है। और जब आप में अंदर खराबियां आती हैं तो अल्लाह ताला की रहमत जो है खत्म हो जाती है। 1989 से लेके 1994 तक जिस शख्स ने भी काबुल शहर देखा है, वो शख्स कभी एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर सकता है कि ये वो लोग हैं जो कुफर के साथ लड़ रहे हैं। एक पहाड़ी के ऊपर अहमद शाह मसूद की फौजें थी, एक पहाड़ी के ऊपर एक पंजाब की फौजें थी, और काबुल शहर जो खंडर बना दिया गया। आज वो लोगों को अंदाजा हुआ है। आज 51 साल से मेरी पिछले दिन मुलाकात हुई थी जब लाहौर आए थे, तो आप वो समझते हैं कि एक वसील बुनियाद किस्म की सूरत हाल हमें बननी चाहिए। आपको पता है कि जिस 3 बड़े कमांडान को गवर्नरों के खिलाफ तालिबान खड़े हुए थे, और जिसमें स्पिन बुलदक का था, लश्करगाह का था और उसके बाद कंधार का था, ये तीनों जो थे ये हिकमतयार के लोग थे और तीनों पे संगीन इल्जाम थे। जिस वक्त तो कंधार के उसमें गए हैं जानान के कैंप में, तो उसके पीछे कम से कम 200 औरतों की लाशें थी कि जिनको रेप करके फेंका जाता था और उनको पता और सबको पहचाना गया था कि कौन जनान आगा है, और जनान आगा को फांसी दी गई थी। एक पंचार का सबसे बड़ा कमांडर था। तो जब आप अपने कमांडर, मैं खुद जानता हूँ अकबर बड़ेज को, उसने जो बंद बनाया था, मैं चावी में था, एक पंचार का कमांडर था, उसको हमने पीछे हटा के उससे बंद वापस, क्योंकि पानी लोगों को रोक रहा था।
جب آپ ذاتی تعصب کی بنیاد کے اوپر یہ بلڈ اپ کریں گے تو یہ اسی لیے ان کو اللہ نے اس طرح کی نصرت عطا نہیں کی جیسی نصرت طالبان کو دی. جی بسم اللہ. امانت کے طور پہ میرے پاس 3 سوال آئے ہوئے ہیں. جی بسم اللہ. ایک ایک کر کے میں پوچھوں گا, جواب اگر مختصر جی آئے بس تو پھر مزید سوال ٹھیک ہے گنجائش بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر. پہلا سوال یہ ہے کہ خبر آ رہی ہے کہ طالبان نے اپنی حکومت قائم ہونے کے بعد جو وہاں پہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگ تھے ان کی جیلوں میں, ان سب کو بغیر کسی وجہ سے نکال دیا ہے, اور وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. آپ اس کے بارے میں کیا پہلے میں, لیکن طالبان نے کہا کہ ہم اس صورتحال کے اندر اس آئینی تمہاری اس کے اندر نہیں آنا چاہتے. 2019 اور 20 یہ 2 بہت اہم زبردست قسم کے پیریڈز ہیں, کیونکہ 2018 میں امریکہ نے اسیس کر لیا تھا کہ اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے. فرانس 2014 میں نکل گیا تھا, اس کے بعد اور لوگ بھی نکل گئے تھے. 2019 میں کچھ لوگ اکڑے اور ان کا ہم آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہم افغان ہیں, ہم کیسے شکست دیتے ہیں, جن میں سارے اشرف غنی وغیرہ. اس میں حامد کرزئی واحد بندہ تھا جو نکلا ہے اس وقت. پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کسی کو جب نکالنا چاہتا ہے نکال دیتا ہے, کہ اس شخص نے جب اوباما وہاں پر آیا تو اس نے کہا تھا مجھے پروگرام بیس پہ آ کے ملو, تو اس نے انکار کر دیا تھا کہ تم میرے مہمان ہو, میرے گھر پہ آؤ. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ بائی لیٹرل ایگریمنٹ کرنا چاہتے تھے, امریکنز نے نہیں کیا اور اشرف غنی نے آ کے کر دیا تھا. تو ہم کرزئی, اس لیے آج کرزئی ان کے بہت زیادہ قریب ہے. 2019 ایگریمنٹ ہوا جب 2020 فروری میں 21 میں فروری میں انہوں نے کہا کہ ہمیں 6 مہینے دے دیں, ہم کچھ کر دیتے. اس 6 مہینے میں 60,000 لوگ مرے ہیں, جبکہ طالبان نے روز ایک لسٹ جایا کرتے تھے, یہ 22 بندے آج ہمارے ساتھ ڈیفیکٹ کر کے آئے, یہ 24 بندے ہمارے ساتھ ڈیفیکٹ کر کے آئے. 2 چیزیں بیان کروں گا, پھر سوال و جواب لیں گے, کیونکہ پھر بات اور طرح کی ہو جائے گی. جس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا, نہ میرا میڈیا کر رہا ہے, نہ انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے. انسانی تاریخ میں جنگیں ہوئی ہیں, سکندر نے بھی جنگیں کی ہیں, فرسٹ ورلڈ وار بھی ہوئی ہے, سیکنڈ ورلڈ وار بھی ہوئی ہے, ویتنام وار بھی ہوئی ہے, سب کچھ ہوئی. انسانی جنگوں میں انسرجنسی بھی ہوتی ہے. آپ کے 2 سپاہی سوات میں جاتے ہیں, آپ پورے سوات کا اشر کر دیتے ہیں, لوگوں کو باہر نکالتے ہیں, دفاع ہو جاؤ, ہم نے مارنا ہے. 3 جگہوں پہ عام معافی کا اعلان ملتا ہے انسانی تاریخ, صرف مجھے کوئی چوتھی جگہ نہیں ملی. الیگزینڈر جو تھا وہ تھیبس شہر میں رہتا تھا, اور تھیبس والے جو بڑے اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے, اس سے تنگ تھے. ان کو خبر پہنچی کہ الیگزینڈر جو ہے وہ کہیں بخار میں مارا گیا ہے, تو انہوں نے وال چاکنگ کر دی اس کے خلاف. یہ پہلی ہیومن وال چاکنگ ہے. وہ واپس آیا, اسے 1 دن کے بچے سے لے کے 90 سال کے بوڑھے تک سب کو باہر نکالا اور قتل کر دیا. اور اس کی اتنی معافی نہیں تھی انسانی تاریخ میں. ایک معافی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے وقت, دوسری معافی آج سے 834 سال پہلے صلاح الدین ایوبی کی. آپ کبھی وہ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں کہ جب یہ سعود کروسیڈز جو تھے یہ داخل ہوئے یروشلم کے اندر, تو 50,000 بندے جو تھے مسجد اقصی کی چھت کے اور اس کے ارد گرد اس کے سین میں جو تھے وہ پناہ لیے ہوئے تھے, اور ایک ایک بندے کو پکڑتے جاتے تھے اور چھری سے ذبح کرتے ہوئے نیچے پھینکتے جاتے تھے. اور ان کے گھوڑوں کے جو ان کے سمیں تھیں, ان کے ٹخنے وہ بھی خون میں ڈوبے ہوئے تھے, ان کو معاف کیا تھا. اور جو رچرڈ آج یورپ کا متصب ترین ہسٹورین بھی ہو تو صلاح الدین ایوبی کو بہتر انسان کے طور پر کہے ہوئے وہ گزر ہی نہیں سکتا, متصب ترین. یہ تیسری معافی ہے, اور اس معافی کے اندر ایک واقعہ آپ کو بیان کر دوں. آج میں نے وہ فلم جو ہے کیروان آف ڈیتھ جو ہے, بہت مشہور فلم ہے, ایک آرٹسٹ اس نے بنائی تھی, ڈاکومنٹری فلم. 8,000 طالبان جو تھے ان کو جنرل مالک اور جنرل دوستم نے پکڑا اس وعدے کے اوپر کہ آپ شہری ہیں اور ہم آپ کو آزادی سے آپ کے گھر لے جائیں گے. ان کو کنٹینرز میں بند کیا گیا, 8,000 لوگ, اور ان کنٹینرز کو دشت لیلا کی دھوپ میں صحرا میں چھوڑ دیا گیا. صرف 8 یا 9 لوگ بچے تھے جو کہانی سناتے ہیں
کہ کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کے پسینوں کو چوسنا شروع کیا اور کس طرح انہوں نے پکارنا شروع کیا اور کس طرح اس کنٹینر کی دھوپ کے اندر تڑپتے ہوئے جان تھی اور 3000 اجتماعی قبریں برآمد ہوئی تھیں. یہ جرم معاف ہوا. کون تھا جس کا بھائی وہاں نہیں تھا؟ جنرل پہلوان جو تھا اس وقت وہ ایک طالب کو پکڑتا تھا، جب اس کے ہاتھ آتا تھا اس کی گردن کے اوپر کٹ لگا کے اس پہ پٹرول بھرتا تھا اور آگ لگاتا تھا اور اس کی تڑپ کے اوپر رقص کیا جاتا تھا. گوانتانامو بے کی 8 بایوگرافیز آئی ہیں. اس 8 بایوگرافیز کو اگر آپ پڑھ لیں آپ کو چوتھا صفحہ نہیں پڑھنا ہے. اس جرم کو معاف کیا گیا. دنیا کے بدترین قسم کا فیل جو ہے سفارتکار کو یہ کبھی کسی نے نہیں کیا تھا. پاکستان کی سرزمین سے ہوا. ملا عبدالسلام سعید کی 60 صفحے کی بایوگرافی پڑھ لیں، وہ معاف کیا گیا. تاجکستان سے باقاعدہ کابل کی اینٹی، آج حیران کن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ امریکن جس وقت کابل میں داخل ہو رہے تھے اس کی فوٹیج دکھاؤ نا آج. اور اس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے ذبیح اللہ مجاہد نے. اس نے کہا پیسفل سرنڈر از اے ریفرینڈم. جب کوئی قوم جو ہے بغیر کسی لڑے ہوئے کہتی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو یہ تمہاری جمہوریت کا ریفرینڈم ہے. آج انہوں نے آخری بات انہوں نے کی ہے جو انہوں نے لوگ جو ہمارے اوپر جو پریشر ڈالتے چلے جا رہے ہیں جو ہمارے کہ جی وسیع البنیاد. آج کوئی عمران خان سے کہے کہ پی ٹی آئی اور اپنا نون لیگ کے ساتھ وسیع البنیاد حکومت بنا بنائے. جو بائیڈن سے کہو ٹرمپ کے ساتھ حکومت بنا بنائے. اس سے کہو نریندر مودی سے کہو راہل گاندھی سے حکومت بنا بنائے. یہ صرف ان کے ساتھ رہ گیا ہے کہ ان کو وسیع کیوں بنائے. اور انہوں نے آج اپنی 3 دن پہلے اعلان کر دیا. میں نے پہلے دن بھی کہا تھا، لوگ کہتے جی عبدالغنی برادر آئے گا فلاں. طالبان ایک بات پہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور وہ ہے بیعت. ملا عمر کا بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بیعت کی تھی اور بیعت توڑنا ہمارے لیے حرام ہے جب تک کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایسی فعل ارتکاب نہ کرے جو خالصتاً غیر شرعی ہو اور جس کے لیے امیر بننے کے لیے نائل ہو جائے. ہم بیعت نہیں توڑ سکتے. ملا اختر منصور کی بیعت انہوں نے کی اور پھر مولانا ہبت اللہ کی بیعت کی. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اسلامی شریعت کے مطابق ہوگا، تمہارے ڈیموکریٹک آئینی سیٹ اپ کے تحت نہیں ہوگا. اس کے تحت جس نے بھی آنا چاہے وہ آ جائے. یہ ہے وہاں کی صورتحال اور یہی وہاں کا کیفیت ہے. سوالات جوابات جو ہیں وہ انشاءاللہ اس پہ آگے بات چلتی رہے گی. دو سوالات ہیں جی. جی بسم اللہ. اس وقت گزشتہ 15-20 سال سے دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پہ مشکل وقت آیا، ترکی سب سے آگے ہوتا رہا ہے. وہ بنگلہ دیش ہو، وہ کشمیر ہو، وہ فلسطین ہو. تو افغانستان کے معاملے میں تھوڑا سا مختلف لگا. اس کی کیا وجہ تھی؟